less morbidity to the patient because bile duct cut करके suture करना is a difficult task. Patient might leak, biliary peritonitis हो सकता है. So from being an alternative, now it has become the treatment of choice. Many things. From that, now we have moved ahead. Endoscopic resection, closure of defects, and US guided intervention. Somebody here probably had just referred me. Patient को बड़े-बड़े mediastinal node थे. Patient had CKD and there were big nodes in the chest, periportal area में. So initially CT guided biopsy was being done, but problem with CT guided biopsy is one thing is inaccessible area, यानी pancreas के पीछे कोई lymph node है या mediastinum में कोई बड़ा lymph node है जिसके आजू बाजू pulmonary artery है, aorta है. So from outside it is very difficult to do. And the other thing is कि pain बहुत होता है. आपने पेशेंट को नीडल पंक्चर कर रहे हैं तो the patient will complain of pain. So US guided intervention has come where we put an endoscope inside, उसमें अल्ट्रासाउंड प्रोब होता है, वो लगा के हम लोग डायरेक्टली अंदर से नीडल पंक्चर कर देते हैं. It is painless, more accurate, and cost wise it is almost same. So many things have come up now. Endoscopic resection means छोटे मोटे ट्यूमर्स पहले से पॉलिप निकाले जाते थे, अब फ्लैट ट्यूमर निकाले जाते हैं. नाउ अर्ली कैंसर्स वी हैव स्टार्टेड रिमूविंग बिकॉज सुपरफिशियल कैंसर है जिसमें नोड्स में मेटास्टेसिस नहीं हुआ है या कहीं और मेटास्टेसिस नहीं हुआ है. कोलॉन में एंड स्टमक में वी कैन रिमूव बाय डूइंग एंडोस्कोपी. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स अ हाई एंड सेटअप, इट रिक्वायर्स वेरी हाई डेफिनेशन एंडोस्कोप्स and it requires very high cauteries that will allow you to do all these things. So the treatment cost comes to close to a surgery only, but the good part is comorbidity कम है. आपने अंदर सब कर दिया. There is no scar, there is no incision, there is no post-op, उतना प्रॉब्लम नहीं होता है. So as I said, पहले पॉलिपेक्टमी आया था, एक छोटा सा गार्ड है उसमें स्नेर डाल दो, निकाल दो. This was the initial thing, but now after that फ्लैट ट्यूमर्स आ गए हैं. अब ESD आ गया है. फ्लैट ट्यूमर्स को हम निकालते हैं. ESD मतलब नीचे तक के ट्यूमर्स को हम लोग कट करके निकाल सकते हैं. So all those technologies have come up because certain times somebody has advised plan for an ESD. So people do call us कि सर ये ESD क्या है, कौन करता है. तो ESD is endoscopic submucosal dissection. That means अगर कोई छोटा रेक्टम में ट्यूमर है जो अंदर थोड़ा स्प्रेड भी हुआ है, we can still remove by doing an ESD. सर्जरी का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. So initially it was just the first phase, that means lumen होता था. Surgeons started entering the second phase, which means extraintestinal. Now everywhere we are talking about third space. Third space का मतलब म्यूकोजा के नीचे सब म्यूकोजल चीजें हम निकाल लेते हैं. And fourth space is intraductal. So आपको पता होगा पोएम किया जाता है. पेशेंट का हमने किया था रिसेंटली, आपको याद होगा. So poem, many people ask us what is poem. POEM, poem is for oral endoscopic myotomy. उसका मतलब पहले जो अकेलेजिया कार्डिया हो गया है. So अकेलेजिया कार्डिया means जो G junction relax नहीं होता and patient starts to have dysphagia. Only treatment was Heller's myotomy. So Heller's myotomy में patient को ट्रांसथोरेसिक वैट्स करके अंदर घुसो, इसोफेगस को कट करो, बाहर से सूचर करो. Obviously cost is there and the मतलब patient को recovery time takes almost 5-7 days now. Now with poem which has come up last almost 5 years, I must have done around 35 poems till now. आज सुबह ऑपरेट करो, अगले दिन मॉर्निंग पेशेंट को we feed and by next day evening we send them home if it is uncomplicated. No scar. माइल्ड चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है 3-4 दिन के लिए. लिक्विड डाइट पे रखना पड़ता है 3 days and then patient is good to go. So patient is comfortable because कोई सर्जरी के निशान नहीं है and the amount of post-op discomfort is drastically reduced. So one of a very most advanced technique which has come up now. Slowly पहले if कुछ लोगों को पता होगा कि अकेलेजिया के लिए बलून डायलेटेशन किया जाता था. That has become out now. It's either Heller's or poem. Now Heller's धीरे कम हुआ जा रहा है because Heller's में तकलीफ उतना ज़्यादा होता है. poem is come up a big alternative now.
fantastic procedure. Now being available at more and more places. पहले only 1 or 2 centers in Mumbai करते थे. There are 3, 4, at least 4, 5 centers which do, but very good. Interventional EUS guided procedures. जैसे अगर पेशेंट को मान लीजिए सीए स्टमक हो चुका है एंड पूरा स्टमक एंड डिओडनम ब्लॉक हो गया, पेशेंट कीप्स ऑन वॉमिटिंग. सो पहले क्या होता था, अगर पेशेंट खा ही नहीं रहा है, सब कुछ पेट में है, तो क्या करना है, कीमो देने के पहले भी फीडिंग का कोई तरीका करना है. सो कई बार मेटल स्टेंट डाला जाता है उस ग्रोथ के अंदर से. कई बार सर्जन सोचते हैं जीजे कर दो, गैस्ट्रोजेजुनोस्टॉमी, ताकि स्टमक से डायरेक्टली फूड जेजुनम में चला जाए. सो सर्जिकल जीजे हुआ ही करते थे, बट अगेन ये जो पेशेंट्स होते हैं बैड होते हैं, दे आर वीक, दे आर सिक. कई बार असाइटिस होता है उनको. सो सर्जन इज ऑल्सो नॉट विलिंग टू ऑपरेट. इधर टेबल पे लेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ ही ना हो जाए, एंड ऑब्वियसली they are very sick. So now EUS guided, straight away we can put stent from stomach to jejunum. That means endoscopically we are able to do GJ. Cost is slightly lesser as compared to the surgery, but safety wise it is more, because हम और कहीं एंटर ही नहीं कर रहे हैं, हमें इंसिजन ही नहीं लेना है. क्योंकि एक एसाइटिस के पेशेंट में आप अगर इंसिजन ले रहे हो तो फिर वो लीकेज चालू ही होने वाला है. बाद में पेशेंट रोज कंप्लेन करेगा, पानी आ रहा है, क्या करें इसका. सो फ्रॉम आउटसाइड, ऑपरेटिंग फ्रॉम आउटसाइड, वी आर नाउ गोइंग फ्रॉम इनसाइड, सो दैट अंदर ही अंदर काम हो जाए, पता ही नहीं चले. जैसे गायनेक में हिस्टेक्टोमी होती है या वजाइनल हिस्टेक्टोमी होती है, क्यों होती है, ताकि देयर इज नो स्कार. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग नाउ. जितना अंदर से कर सके उतना ज्यादा इट बिकम्स टेक्निकली चैलेंजिंग, बट रिजल्ट वाइज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज वो नेचुरल ल्यूमन के थ्रू होता है, नेचुरल ओरिफिस के थ्रू होता है. सो ये बहुत ही ये है. समथिंग विच इज नाउ कमिंग अप इज टिश्यू रीमॉडलिंग एंड रीसर्फेसिंग. नाउ दिस विल टेक सम टाइम, बट लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन. इसका मतलब ये है कि जैसे हमने ये सोचा है कि पेशेंट का ओबेस है तो बेरियाट्रिक सर्जरी है, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करा दिया, एंडोस्कोपी वाइज बलून डाल दिया पेशेंट में कि स्टमक में बलून डाला है, थोड़ा सा वेट लॉस हो जाएगा. ऑल दोस थिंग्स आर देयर. नाउ फ्रॉम देयर वी आर एडवांसिंग टू टिश्यू रीमॉडलिंग. इसमें डिओडनम में घुस के पूरा डिओडनम जेजुनम को यू काइंड ऑफ बर्न फ्रॉम इनसाइड, सो दैट एंड यू प्लेस सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो अंदर ग्रो होते हैं, और जो नया म्यूकोसा डेवलप होता है वो एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, तो पेशेंट स्टार्ट्स लूजिंग वेट. सो दिस इज नाउ कंसीडर्ड टू बी द फ्यूचर, कि धीरे धीरे ये सब इट इज अगेन अभी ये अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन 8, 9, 10 महीने में पीपल हैव लॉस्ट 10, 12 kgs वेट. स्टिल नॉट कम इनटू द ट्रीटमेंट राइट नाउ, बट धीरे धीरे जैसे पोएम चालू हुआ था 2006-7 में शुरू होना, रियल न्यूज में आया 2013-14 के बाद से. सो इट टेक्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, सारी चीजें, बट दिस इज कमिंग अप. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डक्टोस्कोपी. डक्टोस्कोपी मींस टू एंटर इनटू दोस लुमेन व्हिच वी वर नॉट एंटरिंग. जैसे बाइल डक्ट के अंदर अभी बिफोर लीविंग आई डिड अ केस एट क्लिनिकल्स राइट नाउ, जिसमें मिड सीबीडी में ट्यूमर है जिसका बायोप्सी नहीं आता है. नाउ वी हैव अ स्कोप कॉल्ड कोलेंजियोस्कोप. जैसे हम ईआरसीपी करते हुए बाइल डक्ट तक पहुंचते हैं, फिर कोलेंजियोस्कोप डाल के हम बाइल डक्ट के अंदर घुस जाते हैं और उसका बायोप्सी ले सकते हैं. सो नाउ ऑल द डक्ट्स वी आर ट्राइंग टू एंटर. जैसे पैंक्रियाटिक डक्ट है, उसके मिड में ट्यूमर है, तो वी कैन एंटर देयर एंड टेक बायोप्सी. दीस थिंग्स आर अवेलेबल नाउ. Obviously it comes at a cost. मतलब normal ERCP will cost you around 40,000-45,000 rupees. A SPY, that means going inside the bile duct, will cost you around 1.5 lakh rupees. But still quite manageable. So you need to say अभी अगर कोई ऐसे है किसी को rather than removing E poem, मतलब जैसे मैंने poem अकेले बताया, वैसे Zenker's diverticulum है तो there is something called Z poem. If there is gastroparesis, तो we do G poem. जैसे पेशेंट को इतना ज्यादा गैस्ट्रोपेरेसिस है कि कुछ भी ट्रीटमेंट कर लो ना, मेडिकल हो, पेशेंट को ब्लोटिंग है, आप स्कोप डाल रहे हो, आधा लीटर मेरे को खाना हमेशा ही मिलता है, पानी मिलता है, समथिंग हैज टू बी डन फॉर इट. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड जी पोएम, जहाँ पे हम लोग पाइलोरिक एरिया को कट कर देते हैं सो दैट स्टमक थोड़ा सा खुल जाता है एंड द पेशेंट स्टार्ट्स
digesting the food well. So all these things are available. Obviously there are strict criteria. हर किसी को नहीं आप इसको सब्जेक्ट कर सकते कि ये भैया गैस हो गई, एसिडिटी हो गई, ये कर दो ना. It's not like that. But yes, there are so many things which has come up now. Only thing we should be aware of things that these things are happening. So from clips, जैसे मैंने पहले बताया, clips से आप over the scope से आ गए हैं चीजें जिनसे ये हो गया. Now there is something called endocinch. हो गया, उससे ज्यादा इफेक्ट बलून का कम आता है. There are patients who might lose tension. यानी जो स्टमक ऐसा था उसको हमने सुचर करके ट्यूब जैसा बनाया from inside. So with that, जो आप सर्जरी करा के कर रहे थे वही आप एंडोस्कोपी कर लेते हो. तो अगेन स्कार चला गया, कोमॉर्बिडिटी लेस हो गई. हाँ, अभी इस चीज ने इतना पिकअप नहीं किया, मतलब ब्रीच कैंडी ग्लोबल ये सब जगह होते ही है. बट ऑब्वियसली व्हाई दिस इज नॉट कम दैट मच इनटू पिक्चर, बिकॉज स्टिल इसका कॉस्ट एक कन्वेंशनल सर्जरी से ज्यादा है. तो पेशेंट को यही बोलेगा सर सर्जरी हो जा रही है 3 लाख में, तो मैं 5 लाख में ये क्यों करूं? That's a logical thought because these devices are still very costly. So जब तक cost थोड़ा और कम नहीं होता है, probably this will not overtake surgery. But जिस दिन इसके cost कम होने लगे, because ये जो endostitch device में जो एक suture use होता है, वो एक suture का cost is 5,000 rupees, and you might use at least 10, 15, 20 sutures. वो एक suture ही 5,000 का पड़ता है. So till the time these costs don't come down, probably, but fantastic techniques which has come up. अंदर से ही आप सुचर कर लेते हो. I'll show you video. This is also so this, ये पहले अगर सपोज एक बड़ा सा रेक्टम में बड़ा सा अल्सर है या फिस्टुला है, this thing was shown to treat a rectovaginal fistula. Gynec patient रेक्टम एंड वजाइना में फिस्टुला है. तो अगर ये फिस्टुला हो गया है तो ये किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा है. तो दिस इज एन एंडोसिंच डिवाइस. ये फिस्टुला है, आप उसके बाजू में जाते हो, अपने अंदर से टिश्यू को पकड़ा, इंजेक्ट किया, एक तरफ पकड़ा, इंजेक्ट किया. अब देख रहे हैं, दिस वी हैव यूज्ड, इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट. हमने अभी एक रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला को क्लोज किया था. दिस इज हाउ वी क्लोज इट. ये पूरा इंस्ट्रूमेंट असेंबली है, नाउ इट इज अवेलेबल. दैट फीमेल हैड कम फ्रॉम ओमान बेसिकली एंड नहीं हो रहा था, तो शी हैड कम, सो वी डिड दिस एंड गुड रिजल्ट. Obviously again it comes at a cost, but these treatments are available. वरना एक young female 32 years की जिसको rectovaginal fistula है, it is obviously painful for her, socially disturbing for her, and to ask her to undergo a surgery is again a big thing, क्योंकि इस एरिया में सर्जरी करना again becomes complicated. So again now this एक, if I show you बैड पेशेंट, सर्जरी के अलावा पहले कोई ऑप्शन नहीं होता. नाउ वी हैव सुचरिंग डिवाइसेस. जैसे आप सबने CLW सुचर किया ही होगा, राइट? जब भी आप इंटर्नशिप या करते हैं जो भी, तो CLW या क्लिनिक में भी करते ही होंगे. तो सुचर कैसे आप ये करके करते हैं. अब नाउ एंडोस्कोपिकली आल्सो दिस इज कम. सो ये विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप वी आर ट्राइंग टू सुचर. यू सी, वही है, वही नीडल है, वैसा ही है. बट ऑब्वियसली द इसमें एक तो स्किल involved is more, and these instruments which have to go through the endoscope, it has to be modified such कि एंडोस्कोप के चैनल में से जाना पड़ता है. तो these are very very fine. ये मैग्नीफाई होके दिख रहा है इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है, but these are so fine कि इसमें that is the reason the cost is there. But you see, जैसे हम एक CLW suture करते हैं, same way we are suturing inside the stomach. So अगर कोई बड़ा सा ट्यूमर हमने रिसेक्ट किया है तो ट्यूमर को आइदर हम इस तरह से सुचर करते हैं या हम क्लिप करके सुचर कर देते हैं. So these things are now come up available. As I said, full thickness resections आ गए हैं. पहले सिर्फ और सिर्फ पॉलिप निकाले जाते थे. अब जिस्ट है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हैं, जो विद द हेल्प ऑफ स्कोप्स वी कैन